السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ افغانستان کی صورتحال، ہند بحرہ کاہل کے خطے میں چینی سرگرمیوں، باہمی تعلقات اور دیگر مسائل پر بات چیت کی۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ کی حیثیت سے بلنکن کا یہ پہلا دورہ ہند تھا۔ ملاقات کے بعد مودی نے کہا کہ وہ ہند امریکہ اسٹریٹجک شراکت کو مضبوط کرنے کے لیے صدر جو بائیڈن کے مضبوط عہد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بلنکن نے مشیر قومی سلامتی اجیت ڈوئل سے بھی ملاقات کی اور افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال، ہند بحرہ کاہل اور عالمی سیکورٹی کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے سلامتی، دفاع، معیشت، ٹیکنالوجی سے متعلق شعبوں میں تعاون جیسے اہم مسائل پر بھی بات چیت کی۔ 1 گھنٹہ طویل اس ملاقات کے دوران ہندوستان امریکہ تعلقات کو آئندہ سطح پر لے جانے کے لیے طویل میعاد اقدامات پر خصوصی توجہ دی گئی۔ بلنکن نے کہا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان افغانستان کے استحکام اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی لیڈر ممتا بنرجی نے صدر کانگریس سونیا گاندھی سے ملاقات کی اور ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی۔ اپریل اور مئی میں مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں حریفوں کی حیثیت سے کانگریس اور ترنمول کانگریس کے درمیان مقابلے کے بعد یہ ان کا پہلا رابطہ تھا۔ اس بات چیت کے موقع پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی بھی موجود تھے۔ یہ ملاقات کافی اہمیت کی حامل ہے جو 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں متحدہ طور پر مقابلے کے لیے اپوزیشن کے اقدامات کے درمیان ہوئی ہے۔ سونیا گاندھی کے ساتھ 45 منٹ طویل ملاقات کے بعد ممتا نے کہا کہ سونیا جی نے مجھے چائے کے لیے مدعو کیا اور راہل جی بھی وہاں تھے۔ ہم نے پیگاسس اور ملک کی کووڈ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ ہم نے اپوزیشن اتحاد پر بھی بات کی۔ یہ ایک بہت اچھی اور مثبت ملاقات تھی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو شکست دینے کے لیے سب کو متحد ہو جانا چاہیے، سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ مغربی بنگال کے چیف منسٹر 5 دن کے دورے پر دہلی میں ہیں۔ انہوں نے کانگریس قائدین کمل ناتھ اور آنند شرما سے بھی ملاقات کی تھی۔ ممتا بنرجی نے دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال سے بھی ملاقات کی۔ دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ممتا نے کہا کہ آئندہ انتخابات مودی بمقابلہ ملک ہوں گے۔ مودی اور امت شاہ کے قریبی اور معتمد سمجھے جانے والے گجرات کیڈر کے IPS افسر راکیش استھانہ کو ان کی سبکدوشی سے محض 4 دن قبل گزشتہ رات دہلی کا پولیس کمشنر مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی استھانہ کی میعاد ملازمت میں بھی 1 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ استھانہ نے دہلی کے نئے پولیس کمشنر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی ہے۔ CBI کے اسپیشل ڈائریکٹر رہ چکے راکیش استھانہ دہلی کے پولیس کمشنر مقرر کیے جانے سے قبل تک BSF کے سربراہ کے عہدے پر فائز تھے۔ وہ کئی تنازعات میں گھرے رہ چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے نئی دہلی میں شہری سماج کے ذمہ دار اراکین سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہر حکومت میں اس کے شہریوں کو آواز بلند کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے اور اس سے قطعی نظر کہ وہ کون ہیں، انہیں عزت و احترام سے دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ ہندوستان اور امریکہ حقوق انسانی اور بنیادی حقوق جن میں مذہب کی آزادی کا حق بھی شامل ہے، اس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی اساس جمہوری قدروں کے لیے ان کا پابند عہد ہونا ہے۔ پیگاسس جاسوسی اسکینڈل پر بحث سے بچنے کی مودی حکومت کی کوششوں کے خلاف اپوزیشن نے نہ صرف اپنے تیور سخت کر لیے ہیں بلکہ کانگریس کی قیادت میں متحد ہو کر اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے کہ اسے مودی یا امت شاہ کی موجودگی میں اس موضوع پر پارلیمنٹ میں بحث اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ سے کم کچھ بھی منظور نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے اپوزیشن کی 14 پارٹیوں کی قیادت کرتے ہوئے حکومت کے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ اپوزیشن پارلیمنٹ کی کارروائی نہیں چلنے دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیگاسس کے خلاف آواز بلند کر کے حزب اختلاف اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ مودی اور امت شاہ ہندوستان اور اس کے اداروں کے خلاف پیگاسس کا استعمال کر کے پوری دنیا میں ملک کی شبیہ کو خراب کر رہے ہیں۔ اسے ملک مخالف حرکت قرار دیتے ہوئے راہل گاندھی نے 14 پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ اپوزیشن صرف یہ جاننا چاہتا ہے کہ حکومت نے پیگاسس خریدا یا نہیں۔ ہاں یا نہیں میں جواب کا مطالبہ کرتے ہوئے راہل گاندھی نے سوال کیا کہ کیا حکومت نے اپنی ہی لوگوں کے خلاف پیگاسس کا استعمال کیا۔ اتر پردیش میں آبادی کنٹرول کے لیے حکومت جو منصوبہ بندی کر رہی ہے اسے عام طور پر حمایت مل رہی ہے اور مجوزہ بل کا جو ابتدائی مسودہ لوگوں کے مشورے کے لیے پیش کیا گیا تھا اس کی مخالفت میں 1% بھی لوگ نہیں آئے ہیں۔ یہ دعویٰ ریاستی لاء کمیشن نے کیا ہے جس کا کہنا ہے کہ مسودے پر کئی صلاح و مشورے ملے ہیں جن میں 2 بچوں والے مسلمانوں کو مفت حج کرانے کی صلاح بھی شامل ہے۔ علاوہ ازیں اسمبلی و پارلیمانی انتخابات لڑنے، سرکاری راشن اور ریزرویشن کا فائدہ حاصل کرنے پر پابندی اور حق رائے دہی سے محروم کر دینے جیسے مشورے شامل ہیں۔ ریاستی لاء کمیشن نے اتر پردیش آبادی کنٹرول استحکام و فلاح و بہبود بل 2021 کے مسودے پر لوگوں کی رائے کے لیے پیش کیا تھا جس پر 10 دنوں کے اندر مشورے مانگے گئے تھے۔ مشورے بھیجنے کی آخری تاریخ 19 جولائی تھی۔ لاء کمیشن کے مطابق
कुल 8,500 अफराद ने मशवरे दिए, जिनमें साबिक जज, ब्यूरोक्रेट्स, वकला और गैर मुकीम हिंदुस्तानियों तक ने अपनी राय भेजी है। मसूदे पर राय देने वालों में सिर्फ 40 अफराद ने मुजव्वज़ा बिल की मुखालिफत की, जो आरा देने वाले मुंजमला लोगों का आधे फीसद से भी कम है। यानी 1% भी ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें इस आबादी कंट्रोल कानून से कोई परेशानी है। लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस JN मित्तल का कहना है कि इन्हें कई अहम मशवरे मिले हैं, जिनमें 2 बच्चों वाले मुस्लिम वालिदैन को मुफ्त में हज कराने का मशवरा भी शामिल है। अलावा कई लोग 2 बच्चों से जायद वाले वालिदैन के असेंबली और पार्लिमानी इलेक्शन लड़ने पर भी पाबंदी चाहते हैं। नाबालिग बच्चों के जुर्म से निपटने से मुतालिक जुवेनाइल जस्टिस बिल को राज्यसभा में मंजूर कर लिया गया, लेकिन अपोजिशन अरकान की राय की समाअत तक नहीं की गई। शिवसेना ने अपने रद्दअमल में कहा कि जिस तरह ऐवान को एतमाद में लिए बगैर बिल मंजूर किए जा रहे हैं, इससे हुकूमत का तकब्बुर जाहिर होता है। पार्टी तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बयान में कहा कि इस तरह की तरमीमात इंसाफ के मगायर हैं और बच्चों पर मनफी असरात डालेंगे। हिंदुस्तान में बैंक आइंदा माह 15 रोज बंद रहेंगे। अगस्त 2021 के इन तातीलात को दूसरा और चौथा हफ्ता और तमाम इतवार शामिल हैं। 7 हफ्तावार छुट्टियों के अलावा बैंकों को मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ नौइयत की तातीलात के सबब छुट्टी रहेगी। अक्सर रियासतों में बैंकों को 19 अगस्त को मुहर्रम की तातील रहेगी, चूँकि मुख्तलिफ मौक़ों पर रियासतों में मखसूस नौइयत की तातीलात होंगी। इसलिए बैंक अगस्त 2021 में 8 दिन पूरी रियासतों में बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तातीलात को 3 ज़ुमरों में तकसीम किया है। यौम आज़ादी की तातील 15 अगस्त इतवार को वाक़ हो रही है, वरना एक और छुट्टी बढ़ जाती। तालिबान ने चीन को यकीन दहानी कराई है कि अफगानिस्तान को किसी भी मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। तालिबान का एक वफ़द मुज़ाकरात के लिए बीजिंग के दौरे पर है। चीन को खदशा है कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान यगोर नस्ल अलहदगी पसंदों की तहरीक के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ताहम तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने ऐसे खदशात को बेबुनियाद करार दिया। चीन ने मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर की सरबराही में दौरा करने वाले तालिबान वफ़द को बताया है कि वो भी अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। चीन ने तालिबान से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी पार्टी को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें, जिसके जवाब में अफगान तालिबान ने चीन को यकीन दहानी कर रही है कि वह अफगानिस्तान की सरजमीन को दूसरे मुल्क के खिलाफ साजिशों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिका के अफगानिस्तान में पहले मुदाखलत करने और फिर पोजीशन कमज़ोर होने पर सियासी तस्फिया तलब करने के मामले पर सवालात उठाते हुए कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब कर दी है। इनके ये रिमार्क्स इस वक्त सामने आए जब अमेरिकी फ़ौज और नेटो अफगानिस्तान से इनखला के आखिरी मराहिल में है। सऊदी अरब में कोरोना से खतरनाक हद तक मुतासिर होने वाले ममालिक का सफ़र करने वाले शहरियों पर 3 साल की सफरी पाबंदी आयद करने का ऐलान किया गया है। सऊदी अरब ने कोरोना रेड लिस्ट में शामिल ममालिक का सफ़र करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। ताहम अब खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सख्त सज़ा का ऐलान किया गया है। रियासत तेलंगाना का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा? चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जगह हासिल करने में कौन कामयाब होगा? रियासत की क़यादत नौजवान नस्ल के हवाले करने के अलावा नौजवानों को सियासी सरगर्मियों से करीब करने के लिए रियासत की सरकर्दा सियासी जमातों के दरमियान रस्साकशी का सिलसिला जारी है और तेलंगाना में 50 साल से कम उम्र सियासतदान चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की दौड़ में शामिल हैं, जिनमें कांग्रेस के ए रेवंत रेड्डी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के बंडी संजय और बरसर इख्तिदार सियासी जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व रियासती वजीर KT रामाराव शामिल हैं। सियासी हलकों में जारी तबसरों के दरमियान कहा जा रहा है कि तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए इन तीनों सियासी जमातों के कायदीन का नाम ज़ेर गश्त है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के दोबारा इख्तिदार में आने की सूरत में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फर्जंद KT रामाराव को चीफ मिनिस्टर बनाए जाने के इम्कानात रोशन हैं, जबकि कांग्रेस के इख्तिदार हासिल करने की सूरत में मौजूदा सदर प्रदेश कांग्रेस ए रेवंत रेड्डी को कांग्रेस की जानिब से चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया जा सकता है। कांग्रेस के ज़राए का कहना है कि कांग्रेस पार्टी आला कमान की जानिब से चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार का इंतखाब किया जाएगा, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है इसमें कवी इम्कान है कि कांग्रेस आला कमान की जानिब से ए रेवंत रेड्डी को ही चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाएगा, क्योंकि ए रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से रास्त मुकाबला कर रहे हैं और इनकी सियासी तनकीदों का रास्त निशाना TRS सरबराह KCR होते हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को इस्तेकाम हासिल होने की सूरत में भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की सियासत पर अमल करने के इक़दाम कर सकती है और अगर बीजेपी को काबिल लिहाज नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होती है तो भारतीय जनता पार्टी बंडी संजय में पार्टी का मुस्तकबिल देख रही है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के हौसलों में होने वाला इजाफा अब मुतज़लज़िल होने लगा है और कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों के दौरान बीजेपी कायदीन के इस्तीफ़ों और कांग्रेस में शमूलियत के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी को मज़ीद झटके लग सकते हैं।
दोबाग असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार रघुनंदन राव एडवोकेट की कामयाबी के बाद बीजेपी के हौसलों में इजाफा होने लगा था, लेकिन इसके बाद मजलिस बल्दी आज़िमतर हैदराबाद में काफ़ी मेहनत के बावजूद खातिर ख्वाह नशिस्तों पर कामयाबी हासिल न होने के सबब बीजेपी ने सूरत हाल पर गौर करना शुरू कर दिया था। लेकिन ग्रेजुएट रुकन कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में शिकस्त और फिर नागार्जुना सागर ज़मनी इंतखाबात में बेअसर साबित होने के बाद बीजेपी इस सूरत हाल को हजम नहीं कर पा रही है और पार्टी के सीनियर कायदीन की जानिब से शिकस्त की वजूहात का जायजा लेने के अलावा पार्टी कायदीन को मुहासबा करने का मशवरा दिया जा रहा है। दोबाग ज़मनी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के बाद बीजेपी को टीआरएस का मुतबादिल तस्वुर किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी रियासत की सियासत पर असरअंदाज होने लगी है, लेकिन बतदरीज नाक़िस मुजाहरे के बाद अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी का असर ज़ायल होने लगा है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में एलबी नगर में शी टीम, ई चालान और ITMS ऑफिस की इमारत का इफ्तिताह किया, जबकि भगत सिंह नगर में भरोसा सेंटर इमारत का संग बुनियाद रखा। एलबी नगर में 102 करोड़ से 2 मंजिला इमारत तामीर की गई है, जबकि CDE सेंटर की तामीर के लिए 18 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। भगत सिंह नगर में भरोसा सेंटर 5,500 मुरब्बा फीट अराजी पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए तामीर किया जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस मुल्क भर के लिए मिसाली है, जिसने रियासत में बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखा है। कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो वजीर बरखी जगदीश रेड्डी के काफिले को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वजीर बरखी नए राशन कार्ड की तकसीम के लिए मुंगोर हेडक्वार्टर पहुंचे थे। वादरे के गुज़िश्ता दिनों चोटुप्पल में राशन कार्ड की तकसीम के मौके पर प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर रुकन असेंबली ने एहतजाज किया था। इस मसले पर वजीर बरखी से बहस व तकरार हुई और राजगोपाल रेड्डी ने इन्हें मुंगोर असेंबली हल्के के दौरे का चैलेंज किया था। वजीर बरखी ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए आज मुंगोर हेडक्वार्टर में राशन कार्ड की तकसीम की तकरीब मुनक़िद की। रुकन असेंबली और कांग्रेस कायदीन को एहतजाज से रोकने के लिए गुज़िश्ता रात ही इन्हें मकानात में महरूस कर दिया गया था। कई कायदीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया गया। रुकन असेंबली राजगोपाल रेड्डी को हैदराबाद आउटर रिंग रोड के टोल प्लाजा पर इस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो मुंगोर तकरीब में शिरकत करना चाहते थे। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद के हल्के असेंबली बांसवाड़ा में 35 साला मुस्लिम शख्स को गौ रक्षकों ने पीट कर हलाक कर दिया, जबकि इनके भाई को भी हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। ताख़ीर से मौसूला इत्तला में बताया गया है कि ज़िला कामारेड्डी के नसरुल्ला आबाद मंडल मुस्तखीर के रहने वाले रज्जब अली और इनके भाई अजीज़ बड़े जानवरों के व्यापारी हैं। 26 जुलाई को शाम के वक्त ये दोनों भाई बांसवाड़ा के मौजा पुलकल से बड़े जानवरों को खरीदने के बाद ऑटो ट्राली से बांसवाड़ा आ रहे थे कि मौजा मुदिया चेरुवू में पेट्रोल पंप के करीब तकरीबन 15 गौरक्षक मोटरसाइकिलों के जरिए वहां पहुंच गए और इन्हें वहां घेर लिया। रज्जब अली को गौरक्षकों ने लाठियों और दूसरे औजार से पीट कर हलाक कर दिया, जबकि अजीज़ को भी शदीद ज़ख्मी किया गया। ताहम वो किसी तरह हमलावरों के चुंगल से भागने में कामयाब हो गए और अफराद ख़ानदान के पास ज़ख्मी हालत में ही पहुंचकर इस वाक़े की इत्तला दी। बादशाह इन्हें पहले बांसवाड़ा के सरकारी दवाखाने से रुजू किया गया और तशवीशनाक हालत की वजह से निज़ामाबाद के सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस बांसवाड़ा जयपाल रेड्डी जाए मुकाम पर पहुंच गए। मक़तूल रज्जब अली के अफराद ख़ानदान की शिकायत पर पटलम पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब मक़तूल के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस इस वाक़े को हादसा ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही है, जबकि रज्जब अली का मॉब लिंचिंग में कत्ल हुआ है और पुलिस कातिलों को बचा रही है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से सदाकतनामा तलाक की इजराई मजदूद कर दिए जाने के बाद अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कानून मुस्लिम ख़वातीन यानी तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निकाह 2019 की मंजूरी के बाद वक्फ बोर्ड ने शरीयत और कानून की रोशनी में दी जाने वाली तलाक पर भी सदाकतनामा तलाक जारी करना बंद कर दिया है। ताहम खुला और इस कानून के निफाज की तारीख यानी 31 जुलाई 2019 से कबल दी जाने वाली तलाक पर सदाकतनामे जारी किए जा रहे हैं। ओहदेदारान वक्फ बोर्ड का कहना है कि इस खुसूस में वो रियासती हुकूमत के वाज़ेह अहकाम के मुंतज़िर हैं। वक्फ बोर्ड इन तारीख के बाद दी गई तलाक के लिए दरख्वास्त फॉर्म जारी ही नहीं कर रहा है। लॉकडाउन के बाद गुज़िश्ता 1 साल से लोग सदाकतनामा तलाक के लिए वक्फ बोर्ड से रुजू नहीं हो पा रहे थे। ताहम अब इस खुसूस में अवाम की एक बड़ी तादाद वक्फ बोर्ड से रुजू हो रही है, मगर इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है।